Good morning, class. Today we'll be discussing our practice question on unit number 6. Class, I hope that you have already watched the videos that I have already shared, the short videos and all the practice question videos. I request you to at least watch the practice question videos that I have shared right from those two case studies that I have shared, because you know you will be getting a 20 marks question for this case studies, and all the practice question that I have shared for you unit number 2, 3, 4, 5, and 6. Here I am sharing. Do was those are the crisp revision of all your chapters. So here we'll be discussing on unit number 6. Let's get started. So see, the question is like this, that you need to explain the concept of reverse logistic. You remember that in unit number 6 we have covered the reverse logistic. So here the question is asking, what is the concept of reverse logistics and why it is important in both the traditional and e-commerce firms. Okay. You also need to discuss can how analytics can optimize the location of the return centers, reverse distribution plan, and vehicle routing for the return collection. See, what has been asked for the location, for the distribution, and for the routing. So three things have been asked here, and you also need to provide some example where you have to illustrate the application of analytics in reverse logistics. Okay, if you remember, we have discussed the for the traditional we have discussed the Titan, and for e-commerce we have discussed the Flipkart case study. Okay, if you have not watched, you can just go and watch the unit number 6. Okay, the videos are so short that I guess I have covered in 10 to 12 minutes, right? So you can watch that. You can just if you want, you can just increase the speed as well. Okay, still here also we'll be covering the same. We'll be covering the whole of our unit number 6 in a very crisp manner. Okay, so let's see what can be the way of writing the paper. Okay, so firstly you need to introduce and then write. Okay, you can write an introduction paragraph that yes, reverse logistic means it is a process of moving the goods from the final destination back to the manufacturer, right? And basically the reason may be the return, recycling or refurbishment or disposal. So these may be the reasons. Okay, and the traditional logistic, what happens, there was the focus of the traditional logistic, basically it focuses on the flow of production from the manufacturer to the customer. मतलब सारा focus जो था वो customer तक पहुंचाने पे था. But अभी now when the e-commerce is at so peak, तो अभी जितना फोकस कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का, उतना ही फोकस रिवर्स लॉजिस्टिक पर भी है कि इन केस गुड्स रिटर्न आए तो हाउ टू लाइक रिजॉल्व द मैटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना? कैसे कस्टमर को उसके पैसे वापस कर देना और कैसे गुड्स को वापस मतलब रीसेल करना है, रिफर्बिश करना है, वॉट एवर. ओके, सो द फोकस इज equally towards reverse logistic. So the first question was asking the importance. Okay, see, no, the first question was regarding the concept of reverse logistic, and then you have to discuss on the importance. Okay, so see, the return management means it basically means handling the return goods due to the defect or customer is dissatisfied or recalls, whatever. So refurbishing and remanufacturing can be these can be the it is visible to you, yeah. So these can be the best alternative that can be done. या तो refurbish कर दो उस product को, या फिर remanufacture करो, या repair करो, या restore करो उस product को कि resell हो जाए वो कभी, है ना? या recycle करो, refurbish करो, है ना? तो ये सब किया जा सकता है. या फिर ultimately आपको क्या करना पड़ेगा? Dispose of करना पड़ेगा उसको, है ना? So बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि ये एक तो हो गया, आप रिपेयर कर लो, रिसाइकल कर लो, या डिस्पोज कर दो, है ना, उस गुड्स को जो रिटर्न आया है ना? तो रिपेयर एंड मेंटेन करके आप उसको वापस बेच सकते हो, है ना? तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स है कि रिटर्न मैनेजमेंट को आप इस तरह से बेटर मैनेज कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू प्रोवाइड द आफ्टर सेल्स सर्विसेज. लाइक अगर रिपेयर जरूरत है तो रिपेयर करो, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड दैट यू हैव डिलीवर्ड टू द कस्टमर, यू नीड टू प्रोवाइड दैट सर्विस. तभी आपके कस्टमर की लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन बनी रहती है, राइट? So return management is one vital thing that needs to be taken care in the reverse logistic. Okay.
Now we are discussing what is the importance of reverse logistic. Reverse logistic का importance क्या है? Sorry, what is the importance of data analytics in reverse logistic? Here we have discussed कि रिवर्स लॉजिस्टिक क्यों जरूरी है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है, लॉयल्टी बनाने के लिए जरूरी है, और रिटर्न मैनेजमेंट को प्रॉपर मैनेज करना भी बहुत जरूरी है कि किसको रिफर्बिश करना है, किसको रिटर्न, किसको रिसाइकल, किसको डिस्पोज अकॉर्डिंगली, है ना. नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग कि डेटा एनालिटिक्स क्यों जरूरी है रिवर्स लॉजिस्टिक में. ओके, सो पहली बात तो वी आर पिकिंग अप द ट्रेडिशनल फॉर्म. ट्रेडिशनल फॉर्म्स के बारे में अगर डिस्कस कर ले तो सबसे पहला बात है कॉस्ट सेविंग होता है. अगर आप रिवर्स लॉजिस्टिक प्रॉपरली करते हो विद ऑल द डेटा एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग, तो आपका कॉस्ट सेविंग होता है, बिकॉज आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही हो जाता है, आपको सही टाइम से पता चल जाता है कि उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करना है या उसको रिटर्न करना है या क्या करना है ना. तो इससे क्या होता है, आपका कॉस्ट जो भी उससे एसोसिएटेड होता है, जैसे कि अगर उस प्रोडक्ट को वापस मंगवाने से कोई फायदा नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट वापस लाने में उसमें ज्यादा खर्च लग जाए देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, देन इट्स बेटर टू सजेस्ट द कस्टमर टू डिस्पोज ऑफ, है ना. तो इस तरह करके एसोसिएटेड कॉस्ट जो रहते हैं वो सेविंग हो जाता है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है. दूसरा, कस्टमर सेटिस्फाई होता है. अगर आपका रिवर्स लॉजिस्टिक अच्छा है ना, और आप फटाफट कस्टमर को रिफंड कर देते हो और उनका प्रोडक्ट रिप्लेस कर देते हो, है ना, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है. सस्टेनेबिलिटी मीन्स अगर आप मतलब प्रॉपरली प्रोडक्ट को रिसाइकल कर दे रहे हो और प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्पोजल, लाइक बैटरी वाला केस, इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड द टाटा, तो अगर आप प्रॉपरली डिस्पोज कर रहे हो तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है. फिर ब्रांड रेपुटेशन भी बनता है ना. अगर आप ट्रस्ट और लॉयल्टी बना पाते हो कस्टमर का ट्रस्ट लॉयल्टी कैसे बनता है, जब आप उनके जो भी डिफेक्टिव गुड है उसको फटाफट रिप्लेस कर रहे हो, रिफंड दे रहे हो एंड ऑल दीज थिंग्स, देन ऑटोमेटिकली यू गेन द कमिटमेंट ऑफ द कस्टमर. ओके, उसके बाद अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो सबसे पहला एडवांटेज है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ना. आप सबसे पहले कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो जिसमें आपको डाउट रहता है, तो आप सबसे पहले चेक करते हो क्या इसमें रिप्लेसमेंट और रिटर्न का ऑप्शन है ना. देन ओनली यू सिलेक्ट. तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपको कस्टमर आप अट्रैक्ट कर पाते हो, रिटेन कर पाते हो ना. दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बेटर हो जाता है, क्योंकि आपका जो इन्वेंट्री है उसमें आप बेटर देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, मतलब कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो वापस वापस बार बार ही रिटर्न और रिफंड में आ रहा है ना. उसको ट्रैक करके आप उसका स्टॉक मैनेज बेटर कर सकते हो ना, उसका स्टॉक मतलब कम कर सकते हो, है ना, उस वाले प्रोडक्ट का. राइट, तो इस तरह से आपको पता लग जाता है. तीसरा आपका बात है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ता है, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट स्टॉप कर देना बनाना. अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बार बार रिटर्न में आ रहा है या डिफेक्ट में आ रहा है ना, या फ्रेजाइल प्रोडक्ट है वैसा, या जो बार बार डिफेक्टिव हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपना ऑपरेशन भी एफिशिएंट कर सकते हो, क्योंकि आप क्या करोगे, रिवर्स लॉजिस्टिक ऑपरेशन यूज करोगे टू हैंडल द हाई रिटर्न रेट्स, है ना, एंड अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को बंद करवा दोगे. राइट. चौथा बात है कि डेटा से ना आपको एक फ्यूचर फोरकास्टिंग मिलता है, एक इंसाइट मिलता है कि आपको किस प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू आ रहा है, किस प्रोडक्ट को कस्टमर प्रेफरेंस दे रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, तो आपको एक फ्यूचर इनलाइटमेंट भी मिलता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स इन रिवर्स लॉजिस्टिक. तो एक तो हमने ट्रेडिशनल फॉर्म के बारे में बात कर लिया, एक हमने ई कॉमर्स के बारे में बात कर लिया. नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक, है ना. तो रिवर्स लॉजिस्टिक में अगर डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं तो कैसे ये रिवर्स लॉजिस्टिक जो है वो ऑप्टिमम होगा, मतलब बेस्ट टू बेस्ट यूज हो पाएगा, है ना. तो सबसे पहला बात है कि आपको तो लोकेशन, जो अपना रिटर्न सेंटर का जो लोकेशन, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए पढ़ा था वैसे ही रिटर्न सेंटर के लिए, कि रिटर्न सेंटर का भी जो आपका लोकेशन है ना, वो लोकेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, है ना. तो उससे क्या होगा कि आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हो कि कहाँ से मतलब कहाँ से पिकअप होना है एंड ऑल दीज थिंग्स, कौन सी लॉजिस्टिक यूज करनी है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है ना, तो वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आप जो लोकेशन जो है वो कुछ ऐसे जगह पर है जो कि प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर, प्रॉक्सिमिटी टू द सप्लायर, ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, है ना. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अच्छी हो जाती है. दूसरा, नेटवर्क डिजाइन. नेटवर्क डिजाइन का मतलब क्या, हमने इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रिंग नेटवर्क होता है, फिर आपका हायरार्की नेटवर्क होता है. तो कौन सा नेटवर्क आपको यूज करना है, तो वो बेटर आप डेटा के थ्रू पता लगा सकते हो ना. ओके, तीसरा हो गया सिनेरियो एनालिसिस. आप अगर डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो आपको हिट एंड ट्रायल करके आप अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करके आप प्री हैंडेड देख सकते हो कि विच रूट इज बेटर, विच लोकेशन इज बेटर एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना.
किसमें आप कॉस्ट इफेक्टिव रह रहे हो और एफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है ना। तो ये फायदा होता है अगर आप रिवर्स लॉजिस्टिक में डेटा एनालिटिक्स का यूज करोगे तो। ठीक है, उसके बाद एक तो हो गया आपको एक हो गया पहला हमने जो डिस्कशन किया ये रिगार्डिंग है लोकेशन ऑफ द रिटर्न सेंटर कि रिटर्न सेंटर का लोकेशन क्या बनाया जाए। दूसरा अगर हम डिस्कस करते हैं कि रूट ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, रूट ऑप्टिमाइजेशन का कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करोगे तो आप जो रूट जो चूज कर रहे हो वो ऑप्टिमाइज कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको जो है सारे लोकेशन वेरियस लोकेशंस का आपको जो है ये रूट का ये पता लग जाएगा। फिर आप ये कर पाओगे, आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, एमिशंस रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आप जो स्ट्रेटेजी कंसोलिडेटिंग स्ट्रेटेजी जो बनाओगे ना उसमें आप बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ से ज्यादा रिटर्न शिपमेंट आ रहा है। अकॉर्डिंगली आप डिमांड फोरकास्टिंग प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करके आप डिमांड फोरकास्टिंग करके क्या है कि अपना रिटर्न वॉल्यूम देख सकते हो और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि कौन सा रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बेटर रहेगा। ठीक है, कौन सा रिटर्न रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ज्यादा बेटर होगा। ओके, तीसरा है व्हीकल रूटिंग। तीसरा है व्हीकल रूटिंग फॉर रिटर्न कलेक्शन। ओके, तो व्हीकल रूटिंग में क्या होगा कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो आपको क्या होगा, रियल टाइम डेटा मिलेगा। रियल टाइम डेटा से आप क्या कर सकते हो, सारे व्हीकल रूट्स को एडजस्ट कर सकते हो, है ना। जहां पर ट्रैफिक लगा आप फटाफट रूट चेंज कर लोगे, आपके पास प्लान बी रहेगा, आप प्लान बी को स्विच कर जाओगे बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा, बेस्ड ऑन द रियल टाइम सिनेरियो। ओके, तो करंट रिटर्न रिक्वेस्ट और ट्रैफिक कंडीशन को देख करके आप अकॉर्डिंगली अपने एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ लोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा कि मतलब जो व्हीकल जा रहा है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमम अपना लोड लेकर जा रहा है या नहीं। इससे कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर डेटा एल्गोरिथम्स यूज करोगे तो इससे आपका पता लग जाए कौन सा रूट जो है वो लीस्ट कॉस्ट रूट है, राइट। आपका कलेक्टिंग रिटर्न्स एंड ऑल दीज थिंग्स, फ्यूल कंजम्पशन, लेबर कॉस्ट एंड व्हीकल मेंटेनेंस सब आपका प्रॉपर हो जाएगा अगर आप मतलब रिवर्स लॉजिस्टिक में भी व्हीकल रूटिंग में अगर डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हो, राइट। इसके बाद नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड टू टेक सम एग्जांपल, द रियल वर्ल्ड एग्जांपल of those company which are actually using the reverse logistic। तो let's discuss। आपको पता ही है Amazon का अगर बात कर ले तो Amazon आपको पता ही है एडवांस एनालिटिकल टूल यूज कर रहा है अपने रिटर्न प्रोसेस में, जिसकी वजह से आप देखोगे as soon as you like process for the return, आपने ऑर्डर दिया रिटर्न का, है ना, वो आपको रिफंड भी मिल जाता है और विद इन 1 to 2 days द प्रोडक्ट इज रिप्लेस्ड, है ना। So you know that this Amazon it is using the advanced analytic tool and by analyzing the return pattern, आपका return pattern देखकर Amazon क्या करता है ना, वो strategically वहां पर जो नियर बाय जो रिटर्न सेंटर रहते हैं उनसे वो जो ना या जो भी हाई रिटर्न रीजन एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्टेशन पहले से फिक्स रखते हैं। उनका प्रोसेसिंग टाइम का बिल्कुल शेड्यूल रहता है, वो रियल टाइम पे डेटा ट्रैक करके और जो है डायनेमिक रूट वगैरह यूज करके पिकअप वगैरह करके अपनी इन्वेंट्री को रीजनरेट कर लेते हैं। ओके, सिमिलरली बेस्ट बाय का एग्जांपल मैंने दिया है कि बेस्ट बाय जो यूएस की कंपनी थी एक्सक्यूज मी, तो वो कैसे डेटा रिवर्स लॉजिस्टिक में डेटा एनालिटिक्स यूज करती है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को मेंटेन, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है मेंटेन करने के लिए कि जैसे पीक सीजन रहता है तो हाउ दे यूज दिस डेटा एनालिटिक्स इन रिवर्स लॉजिस्टिक और रूट ऑप्टिमाइजेशन में कैसे एल्गोरिदम्स लगा करके वो रिटर्न ले लेती है ना। ज़ारा का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे कि ज़ारा आल्सो दे आल्सो leverages by using the data analytics in the reverse logistic to support its fast fashion model। So रिटर्न डेटा को एनालाइज करके ज़ारा ऑलरेडी क्या करता है कि कॉमन रीजन जो उनका उनको मिलता है रिटर्न्स का उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिटी को अपने इम्प्रूव करता है उस प्रोडक्ट के और उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिटर्न्स लोकेशंस को रखता है और रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वो दे ट्राई टू इनेबल फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू इन्वेंट्री, है ना। जो भी प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है फटाफट वो इन्वेंट्री में आ जाए एंड देन व्हाटएवर नीड्स टू बी डन हैज टू बी डन। ओके, एक इसके बाद सिंपल सा आप एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिख सकते हो कि रिवर्स लॉजिस्टिक यू नो इट इज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। इसको आप छोड़ नहीं सकते, रिवर्स लॉजिस्टिक को आप अलग नहीं मान सकते, उसके लिए भी प्रॉपर आपको एज आप नॉर्मली अपने ऑप्टिमम रिटर्न सेंटर्स ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर देखते हो
इसके रिवर्स लॉजिस्टिक के लिए भी आपको रिटर्न सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ देखना होगा प्रॉपरली. Then only you can like become the companies like Amazon and all these things which are like providing the best to best of the uh, uh, into this reverse logistic as well. Okay, so this was unit number 6. I hope you have understood. फिर भी अगर कुछ doubt है, you can just comment in the comment box. And thank you so much. Bye bye.